السلام علیکم ایوریون، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی حج ختم ہوا ہے اور تمام حاجی پاکستان آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. اور جیسے ہی حج ختم ہوتا ہے تو جو لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم عمرہ کریں گے، اور ویسے بھی اگر مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کا گھر دیکھ لیں، ایک بار عمرہ ہی کر لیں. تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ ٹریول ایجنسیز ہوتی ہیں، لیکن پرابلم یہاں آتا ہے کہ پیکیجز سستے ہمیں بہت بتائے جاتے ہیں، بہت لو کاسٹ پہ جو لوگ جانا چاہیں چلے جائیں، لیکن انہیں سروسز پرووائڈ نہیں کی جاتی ہیں. یہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم لوگ پہنچے ایزی ایئر پہ. ٹریول اینڈ ٹورز، ان کے بارے میں نے بہت زیادہ سنا ہے اور ماشاءاللہ بہت سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں. ان کے آفس میں موجود ہوں. بہت زبردست سروسز ہوتی ہیں، وہ تو ہمیں آگے چل کے پتہ چلے گا. بہت سارے لوگوں کا ریویوز بھی آپ لوگوں کو دیں گے کہ کیا کیا سروسز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. اور سب سے پہلے میرے خیال میں یہاں پر عمرے جو ہیں اوپن کیے گئے ہیں، اور عمرے کے پیکیجز کیا ہیں، اس میں کیا کیا سہولیات دی جائیں گی. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کچھ اور کہہ کے جائیں اور وہاں پر کچھ اور ملے. تو اس کی پوری ڈیٹیل آپ لوگوں کو آج ہم بتانے والے ہیں. تو جو لوگ سال 2026 میں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا گھر دیکھیں، ان کے لیے ویڈیو بہت بینیفیشل رہنے والی ہے. تو میرے ساتھ ساتھ رہیے. السلام علیکم ذیشان بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر. ذیشان بھائی، بہت سنا ہے اور میں نے سنا ہے کہ بہت سالوں سے آپ یہ کام کر رہے ہیں ٹریول کا، اور بہت لوگ سیٹسفائی ہیں. یہاں آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت رش تھا، فیملیز ایک ایک گھر سے 8 9 لوگ جا رہے ہیں. تو ایسی کیا خاص بات ہے؟ کیا سستا پیکیج دے رہے ہیں آپ یا سروسز اچھی دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک اللہم لبیک. الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے تقریباً 24 سال ہو گئے ماشاءاللہ اس مبارک کام کو کرتے ہوئے. الحمدللہ لاتعداد دفعہ عمرے کے گروپس لے کر الحمدللہ لے جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور اللہ کی رحمت سے کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کام کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سمجھ کے کرا جائے، کیونکہ یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. جب تک یہ چیز ہم نہیں سمجھیں گے اس کو سروس دے نہیں سکیں گے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میزبانی کا شرف دیا ہے اور اللہ کے مہمان ہمارے پاس عمرے کی بکنگ کرانے آتے ہیں. تو الحمدللہ کوشش ہوتی ہے جب بھی میں عمرے گروپس لے کے جاتا ہوں ماشاءاللہ 20 دن کا ہمارا پیکیج ہوتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ کم بجٹ میں لوگوں کو اچھی سے اچھی پیکیجز اور سروسز دی جائیں. ماشاءاللہ ریٹرن ٹکٹ ڈائریکٹ فلائٹ کی کوشش کری جاتی ہے. ڈائریکٹ فلائٹ؟ جی ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈائریکٹ فلائٹ اور انڈائریکٹ کی کراچی جدہ، کراچی ٹو جدہ، جدہ ٹو کراچی. اور پھر ماشاءاللہ گروپ لیڈر ساتھ ہوتا ہے ہمارے گروپ میں ماشاءاللہ. اس میں 4 اجتماعی عمرے کرائے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی آدمی ایسا نہ سمجھے کہ میں اجنبی ہوں. اس کے ساتھ ایک گروپ لیڈر، ایک امیر قافلہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ 4 عمرے کروائے جاتے ہیں اس کو اجتماعی طور پہ. پہلا عمرہ پاکستان سے، دوسرا عمرہ جب ہم جو ہے مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ مسجد جارانہ سے احرام پہن کر اور عمرے کی نیت کر کے عمرہ ادا کرتے ہیں. یہ دوسرا عمرہ ہو گیا اجتماعی طور پہ. ٹھیک ہے. تیسرا عمرہ ماشاءاللہ ہم کرتے ہیں شہر طائف کی زیارت پہ جاتے ہیں. زیارت کرنے کے بعد وہاں پہ میقات ہے، وہاں سے احرام پہن کر ہم تیسرا عمرہ ادا کرتے ہیں گروپ کی صورت میں. پھر ماشاءاللہ چوتھا عمرہ جب ہم مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے جاتے ہیں، جب مدینہ منورہ سے واپسی مکہ تشریف لاتے ہیں تو احرام پہن کر نیت کر کے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے مدینہ منورہ سے عمرہ کرنا، جس کو ہم بڑا عمرہ بھی کہتے ہیں، تو وہ بھی الحمدللہ وہ سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، اور اجتماعی طور پہ دعائیں پڑھتے ہوئے ہم الحمدللہ عمرہ کرتے ہیں. پھر ماشاءاللہ ہمارے پیکیج کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ الحمدللہ ہم نے اس کم بجٹ والے پیکیج میں بھی ماشاءاللہ 2 ٹائم کا کھانا حجاج کرام کے لیے رکھا ہوا ہے، دوپہر کا اور رات کا الحمدللہ. پھر ماشاءاللہ الحمدللہ یوں کہہ لیں کہ شاپنگ وغیرہ کے لیے ساتھ جانا، کھجوروں کو گائیڈ کرنا، پراپر گائیڈ کہ کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے. اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب آپ مجھے بتائیں 2 ٹائم کا کھانا ہے تو کھانا مطلب اچھا ہے کیسا ہے؟ کہ کراچی کا کوک ہوتا ہے، کراچی کا کوک ہے ہم نے الحمدللہ وہاں پہ موجود ہے. وہ روز ماشاءاللہ کراچی والوں کو جو چٹپٹے کھانے چاہیے ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو الحمدللہ اسی لیے کراچی کا ٹیسٹ انشاءاللہ کوشش کی ہے کہ حاجی کو مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ طیبہ ہو، ان کو کراچی کا ٹیسٹ ملے، کراچی کا ٹیسٹ ملے. صحیح. اور بریانی بھی کھلاتے ہیں ہر جمعے، بریانی بھی بریانی کھلاتے ہیں. کیا بات ہے، پھر تو زبردست ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں گروپ کی صورت میں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی بھٹک جائے، کسی کوئی کنیکٹ نہ ہو سکے؟ تو یہ کیا گروپ کا کیا صورتحال ہوتی ہے؟ مطلب کیسے کس لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں؟ کوشش ہوتی ہے کراچی ایئرپورٹ سے نا ہم حاجیوں کا ایک گروپ بنا دیتے ہیں، تمام حاجیوں کے موبائل میں واٹس ایپ نمبر اس کے ڈال کے ایک گروپ بن جاتا ہے، اور ساری انسٹرکشن اس پہ گروپ کی صورت میں جاری ہوتی ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. اور ماشاءاللہ
कराची एयरपोर्ट से कराची एयरपोर्ट तक की मेरी रहनुमाई होती है। ठीक। कराची एयरपोर्ट पे सबको पहले जमा किया जाता है, ठीक। इज्तिमाई तौर पे दुआ होती है, उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश की जाती है कि इज्तिमाई तौर पे अंदर जाएं, बोर्डिंग करवाएं। अंदर भी ग्रुप में खुद मौजूद होता हूँ, ठीक। सबके सामान क्लियर कराना, मामला क्लियर मतलब कराना, ये सब कुछ भी आपने खुद करना है। रहनुमाई के साथ कि प्यारे भाई ये टिकट, वीजा, पासपोर्ट, फोटो कॉपी कितनी चाहिए, हर ठीक चीज है। मैं फाइल बना के हाजी को देता हूँ। सही। फिर इमिग्रेशन के मामला होते हैं, वहां से क्लियर हो गया। उसके बाद फिर वेटिंग एरिया में जाके जब हम बैठते हैं तो वहां पे हुज्जाज कराम को मेरी कोशिश होती है कि फ्लाइट से 1 घंटा पहले देखें फ्लाइट राइट टाइम है, तो फिर आखिरी दफा वॉशरूम जाएं, ताज़ा वजू करें, एहराम पहनने के लिए कमरा बनाए, एहराम पहनने में माशाल्लाह तरीका भी पूरा बता रहा होता हूँ। बिल्कुल। और फिर बाहर निकल के कोशिश मेरी ये होती है कि फ्लाइट से बैठने से पहले हाजियों को मैं नियत करवा के बिठाऊं। अच्छा, मैं आसान कोई मोटी मोटी किताबों की बातें नहीं करता, मैं आसान उनको 4 काम जो उनको नियत के करने, जब भी उनको उम्रा अदा करना है माशाल्लाह वो मैं हाजी को हिफ्ज करा देता हूँ। पहला काम, आपने उम्रे की नियत करनी है। अच्छा, मैं उम्रे की नियत उर्दू में करवाता हूँ ताकि इनको पता चले वो नियत कर क्या रहे हैं। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल तेरी रज़ा की खातिर उम्रे के एहराम की नियत करता हूँ, तो इससे मेरे हक में कबूल फरमा और इससे मेरे लिए आसान फरमा। मैंने उम्रे की नियत की और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा की खातिर एहराम बांधा। अच्छा, नियत के जो 4 काम है, इस नियत के काम करने से पहले जेंट्स जो हैं वो अपने सर से टोपी वगैरह उतार देंगे नियत करने से पहले, और जो लेडीज हैं अगर वो पर्दा करती हैं तो वो अपना चेहरा का खुला रखेंगी और नियत करने से पहले फिर ये नियत करेंगे। अच्छा, नियत के जो 4 अरकान मैंने आपको बताए हैं, दूसरा काम क्या है कि 3 दफा आपने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये 3 दफा पढ़ना है। ठीक। तीसरा काम क्या है, अब आपको दुआ मांगनी के दुआ मांगना सुन्नत है, आप अल्लाह की राह के मुसाफिर हो गए। और चौथा काम क्या करना है, सामने मस्जिद होती है, 2 रकात नफिल हालत एहराम के अदा करने। ये काम वो 4 काम है, जब भी इन चादरों को जो हमने एहराम पहना होता है, एहराम बनाने के लिए ये 4 काम करने होते हैं और उसके लिए आपको हुदूद हरम से बाहर जाना पड़ता है, जैसे आप पाकिस्तान से जा रहे हैं। ये 4 काम कर लिए, अब आप हालत एहराम में आ गए। अब आप जेंट्स हजरात सर पे और चेहरे पे कपड़ा नहीं लगा सकते और लेडीज अपना ये हिस्सा खुला रखेंगी जब तक उम्रा अदा नहीं हो जाता। अच्छा, उम्रा अदा करने के 5 अरकान हैं, जब तक ये 5 काम नहीं हो जाएंगे, जब तक ये आपका एहराम चादरें नहीं बनेगा, नहीं खुल सकती। ठीक है। अच्छा, 5 काम क्या है ये भी देखें, कितना आसान मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार अर्ज कर रहा हूँ। पहला काम है 7 चक्कर तवाफ करना। दूसरा काम है मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफिल अदा करना। तीसरा काम पेट भरकर जमजम शरीफ पीना। बिल्कुल। और चौथा काम है सफा और मरवा के सही के 7 चक्कर लगाना। बिल्कुल। और 5वां काम है हलक करवाना, यानी बाल कटवाना। जैसे ही जेंट्स हजरात अपने बाल कटवाते हैं वो एहराम की पाबंदियों से निकल जाते हैं और वो नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, जैसे गोया आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। बिल्कुल। और लेडीज का मामला ये है कि ये भी आगाही करता रहता हूँ कि आप अपने बाल खुद नहीं काट सकती। अच्छा। आपका महरम पहले बाल अपने कटवाएगा। ठीक है, ठीक है। हालत एहराम वाला अपने बाल खुद नहीं काट सकता, तो वो जेंट्स पहले अपने बाल कटवाएगा, फिर वो अपनी लेडीज की चुटिया का कोना लपेट के। ये बहुत अच्छी नॉलेज थी जो किसी को पता नहीं था। अक्सर लेडीज मैंने देखी है जो खुद से ही बाल कट करती हैं, तो प्रॉपर गाइड अगर कोई कर दे, देखें कितनी आसान तरीकों में आपने 5 तरीके बताए हैं, वरना लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बहुत आसान है, हम कैसे उम्रा करेंगे। और 4 काम नियत के, बस ये 4 काम वो नियत के और 5 काम उम्रा नियत कर ली तो वो अल्लाह पाक वैसे ही रास्ते आसान कर देता है। मतलब उम्रा करने तक और यहाँ वापस लाने तक आपने अपने जो लेकर जाएंगे लोग, उन्हें हाजियों को साथ लेकर आना है। ठीक है, साथ होंगे। अच्छा, तवाफ में भी अक्सर लोग भटक जाते हैं, मतलब कैसे हम तवाफ करेंगे, ग्रुप से निकल जाते हैं। जब मैं दाखिल होता हूँ ना तो लेडीज को बीच में रख के जेंट्स को चारों तरफ एक गोल दायरा की सूरत में बना लेता हूँ और माशाल्लाह मैं वक्तन फवक्तन देखते पूरे, क्योंकि अक्सर इतना रश हो जाता है कि लेडीज परेशान हो जाती हैं, धक्के वगैरह लगते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अर्ज किया, अल्लाह का एहसान अजीम है कि 100+ सफर है और अल्लाह की रहमत से आप समझ सकते हैं कि एक तो होता है काम और एक होता है शौक। तो ये मेरा शौक है और इसी के सदके इंशाल्लाह। सही। अच्छा, होटल्स की क्या डिटेल है, मतलब कितना दूर? होटल की डिटेल ये देखिए मिस, इस पैकेज में जो हम बताने हमने जो ये भी माशाल्लाह पैकेज रखा है, ये भी एक पहला ग्रुप हमारा माशाल्लाह जो इस साल का 2026 1448 सन हिजरी का जो मुहर्रमुल हराम से पहले ही बल्कि हो रहा है, अब तो मुहर्रम को जाए हज के 5वें दिन ही माशाल्लाह। अच्छा, पहले आपको एक बात खुशखबरी भी सुना दूं कि माशाल्लाह
कराची में पाकिस्तान में सबसे पहला उम्रे का वीजा अल्हम्दुलिल्लाह इजी ट्रैवल एंड टूर का अल्हम्दुलिल्लाह जारी हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज भी अल्लाह ने हमें शर्फ बख्शा है। और पहला उम्रे का वीजा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद आपका मैंने देखा है। ठीक है। का जो हमारा पहला ग्रुप है माशाल्लाह वो जा रहा है 2 जुलाई 2026 को। 20 दिन का हमारा ये पैकेज है। सबसे पहला माशाल्लाह इसमें हमारी एक बहुत ही प्यारी हमने एक अपने पैकेज की खुसूसियत रखी है कि हर उम्रा ग्रुप के अंदर ग्रुप लीडर लाजिम है। एक अमीर काफिला जरूरी रखा है ताकि मेरे मोहतरम जो खुश नसीब हाजी जा रहे हैं उनको हर तरह की जो है रहनुमाई मिलती है। माशाल्लाह जो हमारा सबसे पहला ग्रुप 2 जुलाई को जा रहा है माशाल्लाह उसमें अल्लामा सैयद शरियात दाऊद साहब तशरीफ ले जा रहे हैं। मुफ्ती साहब हैं, बहुत प्यारे इल्मी शख्सियत हैं माशाल्लाह। उनकी रहनुमाई में ये 2 जुलाई का ग्रुप जा रहा है। 2 जुलाई को जाना है और 27 जुलाई को वापसी है। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे आप भी बहुत जल्द हमारे इस ग्रुप में इंशाल्लाह। मेरे लिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो जरूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि जब तक बुलावा नहीं होता तो यही यकीन है कि और आपके चैनल के जरिए मैं ये भी पैगाम देना चाहूंगा कि जिसको हरम शरीफ जाने का हाजिरी का शौक है बस वो जितना हो सके कसरत से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता रहे, कि जो जितनी कसरत से पढ़ता है उसका उतनी जल्दी बुलावा आएगा। बिल्कुल। तो माशाल्लाह ये 20 दिन का पैकेज है। ये हमने पैकेज जो निकाला है शेयरिंग का 2,55,000 रुपए का पैकेज है। इसमें 2 टाइम का फूड है, दोपहर का और रात का। इसमें रिटर्न टिकट है, उम्रा वीजा है, तमाम मुकम्मल ट्रांसपोर्ट है, ज़ियारत मक्का मुकरमा, ज़ियारत मदीना तैयबा, ताइफ शहर की ज़ियारत है, बदर शरीफ की ज़ियारत है और इज्तिमाई 4 उम्रे हैं माशाल्लाह। मक्का मुकरमा में माशाल्लाह जो हमारा होटल है ज़ाहिर अख्यार होटल का नाम है। ये फंदक बिलाल के बिल्कुल सामने है, शारा इब्राहिम खलील पे, तकरीबन हरम शरीफ से फासला 1500 मीटर पर है। और मदीना तैयबा में जो हमने होटल रखा है माशाल्लाह 10 मिनट की पैदल वॉक है। बहुत मशहूर होटल है, शारा सित्तीन के ऊपर तरीक शौदा पे अमीर हमजा के मज़ार शरीफ के रास्ते में आता है ये शाहज़ा मुनव्वरा। तो ये सब गाइडनेस के साथ ज़ियारत कराते हुए जो आपको एक रूहानी मजा आएगा। बिल्कुल। मैं कहता हूँ ऐसी रहनुमाई हो कि आपका दिल खुश हो जाए। दिल खुश हो जाए। क्या पता ऐसे भी लोग हो जो जिन्हें एक ही बार मौका मिल रहा है उम्रा करने का, एटलीस्ट उनकी कोई ख्वाहिश दिल में ना रहे। अच्छा, आपसे राब्ता कैसे कर सकते हैं इस पैकेज के लिए और कब तक कर सकते हैं? देखिए माशाल्लाह महदूद सीटें होती हैं, आपको पता है ग्रुप होता है 45-48 सीट्स जो एक ग्रुप बनता है। तो माशाल्लाह मेरा ऑफिस जो है अल्हम्दुलिल्लाह शारे फैसल नर्सरी बहुत मशहूर जगह है, वहां पे दिल्ली स्वीट के बराबर में फरहान होटल है। फरहान होटल के बिल्कुल नीचे 6 नंबर शॉप है और माशाल्लाह बिल्कुल मेन रोड पर है, सामने ही नजर आ जाएगा आपको। इजी एयर के नाम से ऑफिस है। और माशाल्लाह मेरा मोबाइल नंबर है 0315262599। ये सेल नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे राब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल राब्ता। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि साल 2026 में आप लोग उम्रा करें और जियारत करें हरम पाक की, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं बेहतरीन सर्विसेज के साथ। जब तक तजुर्बा नहीं करेंगे, जब तक आप आएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो सकते। इनकी लोकेशन बहुत ईजी है, पूरी डिटेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इनके नंबर इंशाल्लाह स्क्रीन में चलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, उसमें आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनकी लोकेशन ले सकते हैं। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं, टाइमिंग वगैरह भी आप इनसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी है, इन्फॉर्मेटिव है और किसी का भला हो सकता है, कोई उम्रा करना चाहता है, उनका बहुत बड़ा बजट नहीं है, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि इस साल वो भी जियारत करें हरम पाक की। आपको और मुझे जरूर इस बात की वजह से दुआएं मिलने वाली हैं। इंशाल्लाह आती हूँ ऐसी किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।